And I think Zoom sure will get a commission of it if it actually owned the original software in the background. Okay. I Yeah. think that's what I feel. Yeah. So Many companies do it. Yeah, sure. That's what I understand, and this is what I wanted to discuss, and like in more Is detail. it problem at my end? Yes, Neeraj, I think you can exit and enter once. Probably, yeah. There is a bit of a lag. Yeah. Uh, so according to Vamsi, it's a part of a pretty standard look. So not much of a problem as such. But let's hear from others. Mr. Ravi, you are there. What do you think about this? Yeah, hi Yes. everyone. Prateek. Yeah. So, what do you So think? Copy of see, that is Zoom. what within this 2-3 days, the complete LinkedIn and almost every platforms discussing on this. It is good or bad. But see, overall, if you see, it is the same things which happens in every business. There is the Apple CEO once upon a time, he also said the same things on a platform. Like copying is just a part. It's better to steal it. So Steve Jobs said this statement while deliberating iPhone launch. And this is happening. That is what there is no idea which is unique in itself, and it is not being copied. So it is happening everywhere in every section of business. You in India, let's say today we are talking about Zoom, but still the model which Oyo comes in, that is also a copy model of Airbnb, and there are a lot of Ola who is also a copy model. Financial institutions like Paytm and all, e-commerce platforms like Amazon, they're all, the concepts are copied itself. So I don't think anything wrong in this, and especially when the motion of, that is what I in one of our discussions we were talking about, emotions is good for any country for the time being, but we need to strategize ourselves in terms of taking the things up, and with this emotions, I think this is the good things Jio did. On top of it, Jio has not given any kind of right now brief regarding it has been copied, or it is it could be a strategic alliance also. Like all the Chinese apps right now facing a kind of struggle in terms of getting banned, or that situation is there with all the businesses which is there in with reference to China. There could be a chance like Zoom would be interacting with Reliance in that way, and then they come up with this in India. Okay. Yes, Neeraj, you want to say something, please? Okay, so as per my understanding, it will not be a strategic alliance, but it must be a strategy from Jio side that deliberately they have designed in such a way that it's completely looks like a copy of Zoom. Zoom has gained huge popularity, and in recent times it has deeply penetrated in Indian markets. Uh, like in tier 2-3 towns also, I have seen teachers using Zoom who were earlier having physical form of tuitions and all those things. So penetration of Zoom uh, increased a lot, and not only penetration, it bombarded like anything with lockdown. So as part of strategy, Geo must have come up that okay, people are really comfortable with this um, look and feel, and that's the main USP of Zoom as well. So why not let's have a same interface? Why to provide some new thing where we have to go through a learning curve? So that may be a strategy, and there is nothing wrong in that. The value proposition which uh, Reliance Geo can have over Zoom, that they are having a good user base. They are deeply rooted in Indian villages for now, and the best thing is that they are not providing any kind of time limit. The time limit is 24 hours, which is more than enough.
So their value proposition is altogether different, although they are hitting the same kind of customer segment or whatever you can say it. But still, I believe that with this no time limit of 40 minutes or something like that, they are entirely going to change the game. Still people are like, I have seen people asking students to drop down after 40 minutes and then rejoin. My niece is attending classes on Zoom from past some time, and I have seen her teachers doing the same thing. But this thing can really be helpful, and Geo is a homegrown name, everyone knows it, everyone is having Geo Sims. So yeah, they can definitely uh, use that sentiment and deliver a good value to Indian customer, at least for now. Yeah. Okay. Yes, Abhishek. Please. Yes. मेरा क्वेश्चन था कि After Abhishek Vamsi. ठीक है, हाँ बताओ. यस, ये मेरा एक डाउट है, उसके बाद हम आंसर देते हैं. जूम क्या बोलते हैं, जियो मीट में शायद टाइम लिमिट है 40 मिनट का, सही है या हम गलत? नहीं है, 24 आवर्स का है. 24 घंटा. नहीं. ऑलमोस्ट इंफिनिटी. ओके ओके गुड. अब तो चाहिए, जहां तक कॉपी का बात है, हमको लगता है कि ये कोई एक गलत चीज नहीं है ये कॉपी करना. अगर कॉपी भी वही इंसान एक कर सकता है जिसके अंदर कुछ एक काबिलियत हो. हम चाहें कि आज आईफोन का ये कॉपी करके सेम मतलब आईफोन जैसे बनाने का, तो मेरा उस लेवल का ब्रांड नहीं हो सकता. उसके हमको कैपेबल बनना पड़ेगा. तो इनफैक्ट इसको कॉपी को मतलब पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि कम से कम इंडियन कंपनी तो कुछ तो किया, और कम से कम इंडिया बेस मार्केट भी पकड़ ले, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो सकता है. कॉपी करना मेरे ख्याल से गलत बात नहीं है. और कोई चाहे कि हम शाहरुख खान का हेयर स्टाइल कॉपी कर लें और हम शाहरुख खान बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमको उतना स्ट्रगल और मेहनत भी करना पड़ेगा. Yes, Vamsi, please. I think I agree with the crowd. Just 2 points I want to add. I feel it is smart, whether it's Geo or someone else, to use the same interface, because there's no learning curve for the existing users. Imagine the share screen button, instead of center bottom, it's in the left top, because maybe somehow someone else changed it. It makes the usage harder, will reduce the conversion. So it's a good move to almost keep the features same. The second thing I want to mention is, in any market, the product starts with being a premier service, and then it becomes commoditized and becomes free eventually. It's a matter of time. Take any product in the world, especially tech product, like SaaS product. I don't mean a product that you can touch. And how fast it reaches free depends on the market moves. And usually once it becomes free, what happens is usually the next innovation beats the value. Sorry, Vishal. No, sorry. Actually, somebody is. Yeah. So usually once yeah, please. The next, usually there's an innovation that provides value that none of the existing, even free or paid ones provided, and then it again becomes a premium additional angle to it. So I think the video conferencing space is reaching that model where eventually it becomes free forever for everyone. If not, probably Google might introduce it. It's nothing. Probably Google already did it. Essentially, that's all I'm saying. It's going into that path of free. Sure. Yeah, I think I also agree, or have a similar line of thought, that it's pretty much following the same model as the GeoSim, starting with free and then slowly increasing the price till it becomes profitable, either by volume or unit economics, whichever way. I mean, till the unit economics get profitable, either by increasing the volume or increasing the price, or both. So I guess Geo is probably using that. Okay, so Atul sir is there. Yes, Atul sir is there. Please, Atul sir, what's your take on this Geo Meet copying Zoom ka UI? So I completely agree with मेरे third, I think Vamsi you said. मेरा तो extreme view है इस पे.
कि कोई भी if anybody says कि he or she has created something new original, तो he either is lying or the other thing is uninformed, उसको पता नहीं है. इस वर्ल्ड में most things which are get created are created based on the past knowledge. आज फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने इन्वेंट नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री जो या मैथ्स तो वो तो किसी पुराने लोगों ने किया, तो उसी के बेसिस पे फिर टेक्नोलॉजी आई, मतलब साइंसेस के बाद टेक्नोलॉजी आई. आज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईफोन का एग्जांपल हमेशा लेते हैं, तो आईफोन ने फोन नहीं स्टीव जॉब्स ने तो आईफोन डिस्कवर नहीं किया, स्मार्टफोन तो पहले भी था, ब्लैकबेरी भी था और इतने सारे फोन्स थे, तो न फोन डिस्कवर किया न स्मार्टफोन भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, फेल हुए थे. व्हाट he succeeded with, Steve Jobs or anybody who succeeded with, is doing the same thing better than what was being done previously. And the current marketplace may have the right product at the right place at the right price, right time, all those things factors have to fall in. तो वो ecosystem का part था, सही समय पे सही जगह पे आ गया. And sometimes people get lucky also. जब iPhone जब create हुआ तो overall ecosystem was ready for an iPhone. People are waiting for an iPhone. And hit हो गया. Same thing जो हम लोग स्टीव जॉब्स की दूसरी जो कहानी बात करते हैं कि जो मैकबुक जब लाया स्टीव जॉब्स ने, तो एप्पल ने जब मैकबुक लाया तो फ्लॉप हो गया, ज्यादा उतना चला नहीं. स्कूल्स कॉलेजेस में थोड़ा बहुत चलता था या थोड़ा बहुत डेस्कटॉप डिजाइनिंग के फील्ड में लोग होते थे. बट उनका सक्सेस कब से आया? जब अडोबी के साथ पार्टनरशिप हुआ, अडोबी ने एक्रोबैट लाया और बहुत सारी चीजें, तो उनको एक ये मिल गया कि क्रिएटिव डिजाइन के अलावा आजकल पूरी दुनिया में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू डू, लीगल हो चाहे डिजाइन हो, तो यू हैव टू हैव इन अ पीडीएफ फॉर्म इन एडोबी को, सो दैट कि it's consistent wherever in whatever screen you use, whatever desktop, laptop, phone, everything. So even an Apple needed an Adobe, and then also at the right time when people are ready for him. So Steve Jobs की नौकरी गई, फिर वापस आया बचाने के लिए Apple को आया. तो यही मेन पॉइंट मेरा है कि ओरिजिनल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो बोलते हैं कि मैं ओरिजिनल हूँ तो वो झूठ बोलते हैं या उनको पता नहीं होता है. हम लोग हमेशा आई थिंक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी ने बोला था कि स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, कि दूसरे जो महान लोग हैं उनके कंधों पे खड़ा होकर आज मैं ऊपर खड़ा हूँ. अचानक कोई पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ता है, किसको अगर गया होता है तो उसके फुटप्रिंट को आप फॉलो करते करते पीछे चलते, हो सकता है आप फास्ट चलो, आप ज्यादा आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन कोई और रास्ता अगर होता है तो ज्यादातर उसी रास्ते पे चलते. लेकिन कुछ लोग नया रास्ता बनाते भी हैं, वो बहुत कम लोग हैं दुनिया में, एंड देयर आर वेरी फ्यू, जिन्होंने कि अपना कोई रास्ता ही नहीं था, जंगल था, पहाड़ था, बट उस पहाड़ के काट के बीच में रास्ता निकाला. वैसे लोग 1 in a billion होते हैं या वेरी रेयर होते हैं. मोस्ट पीपल हु क्लेम टू बी ओरिजिनल्स आर नॉट. दैट्स माय पॉइंट. Okay, so we have a new person, Rajiv Singh, joining. Rajiv, can you hear me? Yes, Vishal. Okay, so Rajiv, you might remember Vamsi. Yeah. Also here. so Vamsi was my wingmate. So Rajiv, hello. Rajiv Ranjan. Yes, please, Rajiv, introduce yourself to the crowd so that we welcome you. Yeah. Hey guys, my name is Rajiv Singh and I am 2006 graduate from IIT Kharagpur. I've done my bachelor's and master's in industrial chemistry, and after that I have been working in financial analysis domain, oil and gas sector mostly. So yeah, that's it. Yeah. So okay. So Rajiv, also, what's your take on this Geo Meet? First take, let's say, first few thoughts. See, actually, Vishal, I joined a little bit late, so okay, you can maybe listen to the conversation and add later. Okay. Yeah, exactly. Sure. Yes, Neeraj, please. Yeah, Vishal. So I completely agree with what Atulji has said regarding innovation and all. Once Atul sir ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि everything I forgot the name. He named some book. Everything is a remix. Yes, everything is a remix. Yeah. So कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सच्चाई है. नई चीज इनोवेट करना अपने आप में $1 billion आइडिया है, और काफी रिमिक्स करके भी आप काफी अच्छा कुछ इनोवेट कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा बात करें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर रहे हैं इस मार्केट में,
हिस्टोरिकली। सबसे पहले स्काइप वाज यूज्ड टू बी क्वाइट पॉपुलर। स्काइप को फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लिया, और फिर उसका एक अभी भी आज के टाइम पे भी एक लॉयल यूजर बेस है स्काइप का। बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स डेवलप कर लिया पैरेलली, और उसको कॉर्पोरेट फील्ड्स में उसको ज्यादा आगे बढ़ाया। कॉर्पोरेट में आज टीम्स बहुत ज्यादा चलता है, हर कोई वही यूज कर रहा है। स्काइप को धीरे धीरे उन्होंने कॉर्पोरेट से वो हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अदर सिस्को का प्रोडक्ट है, वेबएक्स है, तो उन्होंने भी दे आर क्वाइट रिलायबल इन कॉर्पोरेट फील्ड, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी फीचर्स उन सब चीजों की जरूरत होती है, तो वहां पे टीम्स और आपके सिस्को के प्रोडक्ट ही चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ने, सिस्को ने गैप छोड़ दिया था, जहाँ पे एक आम आदमी जिसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस चाहिए थी, वो अवेलेबल नहीं थी। तो जूम ने और गूगल मीट ने फिर अभी ड्यूरिंग कोविड एरा they made it free, other it used to be chargeable with G Suite, तो वो उसको उन्होंने फिलअप करने की कोशिश करी है। जहां तक बात है जियो की, उनकी अपनी एक वैल्यू प्रोपोजिशन रहने वाली है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि उनकी रीच उस ग्रास रूट लेवल पे है जहां पे रूरल हाउस होल्ड में जियो के सिम्स हैं, और लोग जियो को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी एक पकड़ है। तो वो a similar kind of product in the same geography, but you are targeting entire different customer segment. तो आपकी जो जिसे कहेंगे पोजिशनिंग, वो एकदम डिफरेंट रहने वाली है। ऊपर से इंडियन नेस का फैक्टर है, चाइना के अगेंस्ट सेंटीमेंट है, सो दे आर मेरी थिंकिंग ये है कि दे आर गोइंग टू डू गुड विद इट। हालांकि जियो का रहता है, अभी रिलायंस पे थोड़ा सा लोगों का रहता है कि सिक्योरिटी का फीचर और वो सब चीजों पे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जब तक वो कॉर्पोरेट सेक्टर को इस तरह से हिट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा बातें मेरे को नहीं लगता होने वाली है। हालांकि उन्होंने इनिशियली काफी अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स शुरू से ही डाले हैं, जिसमें पासवर्ड इनेबल मीटिंग और वो सब, लेकिन अभी तक वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात खुद भी नहीं कर रहे हैं। वो एंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। So I'm quite hopeful Jio is really going to do good, और उनका जो ये कॉपी करने का प्लान है, I really liked it। उन्होंने पूरा लर्निंग कर्व ही खत्म कर दिया है। आप सीधा का सीधा एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जैसे आप पहले यूज कर रहे थे सेम वे में यूज कर सकते हैं, आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, जो कि हमेशा रिलायंस ने अलग तरीके से अपने मोबाइल्स में भी किया है, और ये भी शायद उसी का एक पार्ट रहने वाला है। Okay, let's take other people's. Roshan Kumar, do you have a comment, initial comments on this? Hello, good evening, everyone. Yes. I'm Roshan. I was listening to all the conversation, and I also when I joined this meeting, I had some points, and all of my points are already been discussed. Like the thing that the copy paste thing, I mean, so much is being discussed on social media that they have copied. But like my previous speaker was saying, I also very much like this idea. I mean, the way they have somebody was mentioning also. I mean, in my family also, my nephew is hardly, I think, 6 years old, and his classes are being conducted on Zoom. Suppose I want him to switch to GeoMeet, he won't be able to understand the features of a new app. So if something is being developed by Geo, they have completely empathized with their customer base and the prospective customer base. And the way Geo works, I mean, the Reliance, the Mukesh Ambani, the main funda is the money making. The only wholesale purpose which I personally understand is the money making and the value creation for them, for themselves. So if for anything, the creativity, new product, new design, I don't think so. It's even their KPI. The most important KPI is the number of users and money earned out of per user. So anything, any impediment that is in the path of achieving that goal, they have removed everything. And I think that is a very smart move to do a business. So that's my submission, sir. Okay, sure. So feel free to raise your hand if you want to say more later. Ujjwal, are you there?
Yes. Yes, sir. I come later, sir. Actually, sir. Okay. Okay. Mr. Hari. Okay. Preeti ma'am, please. Yeah, a few things that were already discussed, but there are different ways of entering a market. So one is you're a pioneer, wherein you enjoy a huge market share and huge profits. So you can sell at your price. And the other way of entering a market is, okay, you observe, you sit back, you see, and then you enter the same market, same segment. So probably Jew has done that. They sat back, they observed, and they were quick to react before COVID, and they just entered the market. So which is pretty much acceptable. And another thing is Eric, the founder of Zoom, was from WebEx. So it was probably not his original idea. Maybe he wanted to improvise on the WebEx. Once WebEx was acquired by Cisco, he moved on. He was with Cisco and then he moved on to Zoom. So he improvised on the same kind of application. तो चोर की घड़ी तो चोरी हुई है. Complain करेगा कौन? And another thing, while we were discussing, it just occurred to me. We are thinking it's okay to steal an app. Is it because of the sentiment? Because right now we have a sentiment. Okay, India, like made in India types. If we were making Zoom, and probably a Chinese guy would have copied our application, was it still okay to steal? Okay, we can ask this question actually. If somebody copies Shah Rukh Khan, should Shah Rukh Khan be happy or sad? So I would like to comment on that. Please. Shah Rukh Khan will copy what? His hairstyle? Hairstyle, acting style, Kiran style, whatever. तो शाहरुख खान कौन सा ओरिजिनल था? शाहरुख खान भी तो अमिताभ बच्चन को कॉपी करता था और पुराने जितने दिलीप कुमार को कॉपी करता था. तो मेरा मानना है कि कोई ये बोले कि मैं कॉपी नहीं करता हूं तो मतलब कि या तो झूठ बोलते हो या बेवकूफ हो. जैसे हम लोग बात कर रहे थे वेबएक्स और जूम की, तो एरिक वन वेबएक्स का एम्प्लॉय था. ही वाज वर्किंग इन वन ऑफ द की टेक्निकल पर्संस इन वेबएक्स. तो वेबएक्स में उसका काफी कंट्रीब्यूशन था, बट व्हेन ही मूव्ड विद हिज नॉलेज एंड देन ही क्रिएटेड जूम, और दैट्स हाउ मोस्ट स्टार्टअप स्टार्टेड. कि किसी बड़ी कंपनी में, किसी प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहा है कोई, और उसको लगता है कि नहीं इससे बेटर हो सकता है, तो वो इंटरनली कर दे तो अच्छा है. कंपनी के जो बड़े साहब लोग हैं वो लोग उसको बना दें कि भैया तुम सबसे स्मार्ट हो, हम लोग में सबसे आइडिया है, तो तुम ही सीईओ बन जाओ या तुम ही प्रोडक्ट संभालो. अच्छी बात है. ज्यादातर केसेस में नहीं होता ऐसा. सिस्को के जॉन चैम्बर्स जो बड़े बड़े लोग थे, अब लोग एरिक वन को बोलते होंगे कि नहीं, बोलता होगा एरिक वन की नहीं ऐसे नहीं, वेबएक्स में ऐसे करना चाहिए, ये प्रोडक्ट फीचर्स हमें लाना चाहिए, मुझे और 10 मिलियन और चाहिए इनोवेशन के लिए, तो उसको नहीं मिलते होगी. या दैट कुड बी वन रीजन. एंड देन इज कि चलो खुद अपना स्मार्ट करते हैं, हम अपनी बनाते हैं. एंड द अदर रीजन वुड बी कि उसको लगा होगा कि मार्केट बहुत बड़ा है एंड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और मैं क्यों किसी और के दुकान में काम करूं. मैं अपनी दुकान खोलता हूं. एंड एरिक वन ने खोला, और वहां पे टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है. एरिक वन का जूम तब आया जब कोविड आया. तो एरिक वन का कोई उसको पता नहीं था कि कोविड आने वाला है, या उससे मुझे पता था, उसके पहले से था. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वाज वेरी, आज आई थिंक अर्लियर प्रीति सेड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में he already had good customers. Zoom had good customers, but what COVID helped you कि मेनस्ट्रीम में लोग फैमिली कॉल्स करने लगे जूम पे. तो अगेन टाइमिंग बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में. हम पावरफुल हैं, आप पावरफुल हैं, वक्त से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है. Yes, Vamsi. Yes. Yeah, I just wanted to comment on on Kamal's question. I think her question was very astute. I was wondering similar thing, if Jio or not a Indian thing, we would have even had this call. I personally was even against banning anything Chinese in the previous call too, because it always has a ripple effect, like a butterfly effect that we may not see immediately. If this were Chinese, I would have been equally happy. Not happy. I would have been equally not cared. And it's an open free market, and people, it is a common trend for one fish eating another fish, and it goes on. That's why we have a free economy that creates more jobs. So I wouldn't
whether if it's in India or not, but the question is very astute. I think it opens up it opens up a different So I thought have a process. comment on Vamsi after you finished. Please, Vamsi, I'm done. finish. So I'm done. for example, China के context में है कि China doesn't allow Facebook, China doesn't allow Google, China doesn't allow anything, and then China पूरे दुनिया में complain कर रहा है कि इंडिया ने हमको बैन कर दिया, हमको ये कर दिया, वो कर दिया. तो the same company or the same person, entrepreneur, वो अपने लिए बहुत प्रोटेक्टिव है कि मेरे प्रोडक्ट, मेरी आईपी सबसे वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, कोई इसको कॉपी मत करो. बाकी दुनिया के लिए बहुत फिनिकी हो जाता है कि मैं, तो ये ठीक नहीं है. रूल्स अप्लाई फॉर द सेम. गो टू द कोर्ट, गो टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉयर्स के पास, कोर्ट के पास जाइए. कंट्री का डिस्प्यूट है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाइए. बट यू कांट से कि किसी और ने मेरा कॉपी कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया ही कॉपी करके बनी है. कुछ ओरिजिनल तो है ही नहीं दुनिया में. Yeah. So let's dig this a bit deeper. So I'm just taking a reference from yesterday when we actually tried one video conferencing, web-based application yesterday. So some of you are not there, but I'll just give a brief. So that's made by all Indian people. One of them is from IIT KGP also. And so we were testing it, and we gave them some feedback. Once maybe those things are taken care of, maybe we'll try to move or do some kind of mix. So let's say if I talk about that video conferencing application versus GeoMate, दोनों Indian है, right? Now, when let's say two of them are Indian, now I can say that now Reliance is being funded by Facebook, so it's no longer fully Indian anymore. There is a bit of a loyalty transfer to US in some ways. So how do we compare this thing then now? Ki, an app, fully, like let's say investors are from India, developers are from India, investors are from India. I mean, everything, Indian, like 100% pure Indian versus let's say GeoMate, which is a bit influenced by, let's say, some investment from outside, and probably more than, I think Facebook is one big example. So yeah, Neeraj wants to add. Please, Neeraj, बताइए. Yeah, Vishalji. So yesterday, the platform which we used for our this regular call, I really appreciate the effort which team has done, like Abhishek and the other team members. But I want to add one point to that. They have entirely used one existing API which is not Indian, and they have just written a wrapper over it. Okay. The API which Big Blue Button they have used, I analyzed that today, and that API is providing everything end to end. It's an open source. I don't know like which country it's being developed in. They are having their GitHub repository, and it has been forked out several thousand times. So people are using that existing code. Other people are also using, and they are also making it better. So that team has also used that API, and they have just written a wrapper over it. So again, whatever you are saying that developers all are from India, no, it's not like that. World is changing. We are just using whatever till now has been, like what Atul sir was saying, that I am standing on shoulders of some earlier great people. So they have also utilized the same thing, that API was already there, just they have written a wrapper over it. So still, I am really happy with all the efforts they have put in, and it's really appreciable. But it's not good to say that it's 100% Indian thing. I just want to add that. Yeah. Okay. Yeah, Atul sir, आपका you have any comment? और Abhishek Jayanta, are you there? Or Atul sir first. Yeah. I can say something on that. कि Ajay is saying कि there's important point कि intellectual property innovation किसी ने किया, तो उसके लिए तो he or she has to do patent, copyright and stuff like that. तो चाहे वो Zoom हो, चाहे उसके पुराने WebEx हो, they all had to go through that process. And Silicon Valley में या जहाँ भी innovation सब है, तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है lawyers को.
क्योंकि उनका यही काम होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोर्स डिफेंड करो, ये करो, वो करो। लेकिन दूसरों का अगर आप कॉपी करते हो ना, किताब में लिखने में बहुत बड़े लोग बदनाम हुए। जैसे एक फरीद जकारिया CNN का बहुत बड़ा रिपोर्टर है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट, और वो फंस गया था क्योंकि किसी और की उसने कॉपी मार दी थी रिपोर्टिंग में। तो दुनिया के महान लोग भी कॉपी करते हैं, कुछ को पता नहीं होता है कॉपी करते समय कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। कॉपी तो सब करते हैं। फेयर थिंग इज कि गिव ड्यू क्रेडिट। कहीं आपसे इंस्पिरेशन, हाँ बॉलीवुड का एग्जांपल देता हूँ, रिलेटेड है कि बॉलीवुड की पूरी फिल्म है, हॉलीवुड में भी सेम है कि सारी की सारी फिल्म जो है कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड कहाँ से है? पुरानी फिल्मों, 670s की फिल्मों को फिर से रीमिक्स करके फिल्म हो या गाने बनाते हैं। हॉलीवुड के जो बड़े जो फिल्म से मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था आपको, स्टीवन स्पिलबर्ग बहुत बड़ा डायरेक्टर, वर्ल्ड फेमस, या जितने महान जो है ना, ये सारे लोगों की जो बड़ी फिल्म है, टाइटैनिक से लेकर जुरासिक पार्क, वो सारी फिल्में आप उसके 30 साल 40 साल पुरानी फिल्में देखो तो उसी फिल्म को उन्होंने रीपैकेजिंग, रिमिक्स कर दिया। इसलिए मैं एवरीथिंग इज रिमिक्स में बहुत ज्यादा मानता हूँ कि रिमिक्स ही करना ज्यादातर लोग का हमारा लाइफ में पर्पस है कि रिमिक्स कर दो। लेकिन रिमिक्स करते समय इंग्रेडिएंट्स आपने जहां से लिए हैं उनको भी ड्यू क्रेडिट दो। कहीं पे आपने कॉपीराइट लिया, यूज किया, या कहीं पे पेटेंट किसी का यूज कर, तो जिसका पेटेंट है उसको पे करो, पे द राइट प्राइस। अदरवाइज बड़े लोगों में ज्यादातर लड़ाई इसी चलती है। गूगल फेसबुक को सू करता है, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट को करता है, सारे लोग दूसरे से झगड़ रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, किसका कौन सा। और प्रॉपर्टी के अलावा उनकी दूसरी जो लड़ाई होती है टैलेंट के लिए, वॉर ऑफ टैलेंट, कि दूसरे के एम्प्लॉयज को जैसे बेस्ट पर्सन है, जैसे कि एरिक युआन जूम का, तो एरिक युआन को चुराने लिए आई एम श्योर कि माइक्रोसॉफ्ट या बाकी जो भी राइवल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, वेबएक्स का जो भी राइवल होगा, दे वुड ऑल बी डाइंग कि हमको एरिक युआन मिल जाए या एरिक युआन जैसे और भी लोग मिल जाए। तो स्टीलिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज अनदर बिग बैटल व्हिच इज गोइंग ऑल द टाइम इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से नथिंग रॉन्ग विद कॉपिंग, नथिंग रॉन्ग इन रिमिक्स और अडॉप्टिंग, लेकिन ड्यू क्रेडिट एंड फॉलो द लॉ। अलग अलग कंट्रीज के लॉ भी अलग अलग है। तो जूम अमेरिकन कंपनी है, मेरे गांव का कंपनी है, सैन होजे का कंपनी है, मेरे घर से बहुत पास है, तो उसको यूएस के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर जूम इंडिया में लॉन्च करता है तो इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जूम को हम नहीं अलाउ करेंगे। आजकल चाइना से थोड़ा हमारा लफड़ा चल रहा है। तो आपको जिस कंट्री में ऑपरेट करना, आपका जो मार्केट है, वहाँ के लॉज, वहाँ के ट्रेडिशंस, कस्टम को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज अदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, कि थोड़ा सा ग्लोकल इज अ वर्ड आई यूज ऑफन, कि ग्लोबलाइज करो हर चीज को, लेकिन साथ में थोड़ा लोकलाइज भी करो, कि आप जहाँ पे बेच रहे हो तो देखो कि वहाँ पे लोगों की क्या सेंसिटिविटी है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का किस चीज को लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो आपको वो कस्टमाइज भी करना पड़ेगा। Sure. Regarding this IP and intellectual property, इतना हम लोग बात करते हैं, let's say, I guess people make lot of issue out of it, and I think like we're discussing, the main people who make money out of this fight are the lawyers. So regarding this IP, let's try to understand this. Let's say I file a IP copyright, ये वो सब कुछ कर लिया है मैंने, and that IP follows something like ABCD, right? Like, but if there is someone who makes ABCDE, then this ABCDE versus ABCD, does it violate copyright issue now? Or the IP issue? What do you think, Vamsi? Like just adding one extra line of code, does it? Then if you compare them, can we really say it's a IP violation according to you? There's a new remix now. It's a new remix song. Let me rephrase if I got your question right. You are saying if you make a tiny code change and then release a product similar to an existing product, is that considered an IP violation? Is that your question? Yes. So IP is filed on that code and there is a tiny bit change. Is that an IP violation? Yeah. I think it depends on the context. Sometimes if a company writes code, they just don't just copyright it right away. And for code copyright infringements, the laws are slightly different. And usually you rarely see people suing each other for code copyright infringements. But for features,
or original ideas which are not very specific to business, those are usually, when someone violates it, it becomes a big deal, and you have lawyers going again for it. Mm-hmm. Yeah. Okay. I don't know. Yeah, yes. That's all. You want to add anything? Vamsi, or? That's it. That's it. Yeah. Okay. Yeah, Preeti ma'am wants to say something. Please. See, according to my understanding, IP case would kick in. Like it will be unethical, or probably it will kick in a case, a court case. You can sue only when there's no improvement. Like you copy exactly. Mm-hmm. So remix, if you're copying and there is an improvement to the existing whatever. For example, I'll give you a pharmaceutical because maximum IP is in pharma. Like, so what happens is there's a very famous case of Gilvik. So Novartis company. So they have a Gilvik medicine. This is for cancer patients. And the IP is, I think, whatever, 20 years or something. But when it was introduced in India, they got an IP for 20 years. But as in on, the tenure was getting over, so they introduced something. So the law says that if whatever new medicine or new form of Gilvik that you are introducing gives an additional benefit, or the rate of recovery is better, or the side effects are lesser, some improvement over the existing drug, then of course the tenure can be, you can file another IP over it and you can increase. But this is mostly used as a gimmick by the companies. They'll add something and they'll claim, yes, it does. In our clinical trials, it does. But in actual practice, it does not. So there has been instances. However, Indian IP protocols laws are very much lenient. They are not. They are process based. For example, if Gilvik is introduced, they will have to register an IP with a process. So we do. So instead of top-down, bottom-up approach, you can just manufacture the same medicine. So that is allowed in India. It won't fall under the patent laws. Okay. So it varies from company to country to country. So how the patent laws work. So mostly developing countries, it's quite lenient, and it has to be lenient because we can't afford that kind of patent for longer period. Mm-hmm. So the the drugs become super expensive, and it goes out of the affordability. But at the same time, the developed countries, like the US, they say, like we have put in so much money and effort, so we want a patent and we want to earn on it. Otherwise, our R&D goes for a toss. But at the same time, if they do it here in India, if they allow, then we can't afford the medicine, we can't afford the drug. So it really depends where you are and how the laws are made and what are the agreements around the laws. Okay. Okay. Rajiv Singh, you have a comment on this, please, and then Abhishek and Atul sir can add. Yes, Rajiv. Yeah. So essentially, the IP part of it is very interesting to think about, and I'm not an IP expert or so, but actually, when we look at a product, or for example, a book only. For example, if you take a book of any physics for class 11 and 12, any author has not written anything which was not previously discovered or something like that. So there's nothing new as far as the concepts are concerned. But then it is the presentation which is different in different books, and a style of presentation, of course, that is something which matters. And that is what is the copyright or intellectual property of the author. So from the IT product perspective, again, there is functionality and design. I mean, the functionality, user interface, I should say. So if you are copying user interface, essentially you are copying, in my opinion, the intellectual property, one of the intellectual property of the product. Because say you have many spreadsheet products, and the way different spreadsheet products actually, they differ, A, by the user interface, how user friendly it is, and B, by the functionality, if there is any additional functionality or not.
So just copying the same thing, definitely I think this will go into the IP code, intellectual property code, and how the international trade agreements are there. That will definitely go there. And so my opinion, I mean, of course, small kids are using it right now, the Zoom app. And if we are creating something, I think something new, slightly different also should be able, they are quick learner and they should be able, because anyway, the government is going to ban that app. So kids are a good learner, they can quickly switch. So I don't see a problem from that perspective. So that is my take. And definitely it's something which is like, there's something which will be appeared in the IP code. Sure. Okay. Abhishek, please. यस हम कहना चाहेंगे कि आईपी को लेकर मेरा कंसर्न है कि ना जूम का फाउंडर का बैकग्राउंड या जो भी बोलिए इकोनॉमिकली, अगर कोई कंसर्न होता है तो वो अपने देख लेगा सर। मेरा बस यही कहना है कि ऑडियंस को किस में प्रॉफिट होता है, जो कस्टमर है उसको किस में बेनिफिट होता है। जूम में क्या होता था कि 40 मिनट बाद खत्म हो जाता था, जियो मीट में 24 आवर को दे रहा है, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे जियो मीट को यूज करना। तो पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है, दोनों का आपस में मैटर है। या तो उस समझौता किया होंगे, नहीं तो कुछ अपने प्रॉब्लम होगा तो कोर्ट बोलिए या जहाँ बोले वो अपने सॉर्ट आउट कर लेंगे लोग। पर क्या बोलते हैं, कस्टमर को तो बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोगों को बस कस्टमर एज ए पॉलिटिक्स एग्जैक्टली, दोनों मजबूत पार्टी है पैसा में, वो अपना संभल जाएंगे लोग। ठीक है, हम लोगों को जूम से प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इस साल का 10-11 हजार रुपया लोगों को देना पड़ जाता है, वो फ्री में दे रहा है। ठीक है, यूज करते हैं। और क्या? Yes, Atul sir, you had some comment. Mr. Ravi want to add? Yes. Atul So I just wanted to add, कॉपीराइट तो बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉपी लेफ्ट भी एक टॉपिक है डिस्कस करने का। कॉपी लेफ्ट एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैंने कुछ क्रिएट किया, ओरिजिनल गाना, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल कोड, ये मेरा है एंड आई नीड टू हैव राइट। बहुत सारे लोगों का एक मूवमेंट चला, कॉपी लेफ्ट मूवमेंट बोलते हैं, कि जो वही बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जो भी मैंने क्रिएट किया है मैं पूरी दुनिया को अवेलेबल करा रहा हूँ, दे कैन यूज इट फॉर फ्री। क्रेडिट कुछ मांगते हैं, कुछ तो मतलब क्रेडिट के भी तुमको जिसको यूज करना करो, बिकॉज उनका मेन इंटेंशन है कि दुनिया में प्रोग्रेस हो, एडवांसमेंट हो। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी जितनी कंपनी चल रही है, सक्सेसफुल कंपनी, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड आईफोन, ये सारे लोग पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ रही है। तो ओपन सोर्स मूवमेंट पे बहुत लोग जा रहे हैं कि आज पूरे दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका भी सर्वर चल रहा है ना, तो उनके बैकग्राउंड में लिनक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, अपाचे का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस तरह के जो कॉपी लेफ्ट में आज ब्राउजर भी, मोजिला ब्राउजर ओपन सोर्स ही था, तो मोजिला से लेके कल को गूगल ने क्रोम बना दिया, लिनक्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए। अपाचे के सर्वर पे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज अपाचे के सर्वर पे चलते हैं, एंड दीज आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर ओपन सोर्स या कॉपी लेफ्ट के हिसाब से। तो मेरा ये कहना है कि तुम्हारा क्या था गीता में ज्ञान, जो या किसी कि तुम्हारा क्या था जो तुम लेके आए थे, क्या है जो तुम लेके जाओगे, जो कुछ भी है वो इस पृथ्वी पे वो तुम्हारा नहीं, जो पाया यही पाया, हाँ, जो खोया जो पाया यही पाया, और जाने पर जितना दे के जा सकते हो जाओ। तो दैट इज द फिलॉसफी आई बिलीव इन। और बहुत सारी कंपनीज भी उसमें जाती हैं, जैसे एक एग्जांपल बहुत फेमस है माइक्रोसॉफ्ट तो हार्डकोर बहुत कॉम्पिटिटिव था, बिल गेट्स ने पूरी दुनिया से कॉपी कर करके अपने सॉफ्टवेयर बनाई, सब कुछ किया। बहुत एंटी ट्रस्ट पे भी उनके इतने सारा केस हुआ, यूएस में भी, यूरोप में भी। आज अभी का जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने सॉफ्टवेयर को सारे लोगों को फ्री में कर दिया कि कोई भी अगर स्टूडेंट जितने हैं फ्री में यूज करना है, बाकी लोग करना करो, लेकिन कुछ चीजों के लिए हम प्रीमियम चार्ज करेंगे। आई थिंक दैट इज अ गुड मॉडल कि पूरी दुनिया मेरे सॉफ्टवेयर पे आ जाएगी। जो मॉडल सक्सेसफुल कि सारे स्कूल के बच्चे आज विंडोज यूज करके या हो गए, अब वो जो कंपनी में जाएंगे काम करेंगे तो कंपनी वालों से पैसा ले लो, क्योंकि कंपनी वाले वही जो स्टूडेंट था
आज वो कंपनी में डिसीजन मेकर है या उसके पास बजट है, तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए या जो भी प्रोडक्ट है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेगा। एंड आई थिंक दैट मॉडल इज अ गुड वन कि दुनिया को फ्री में खिला के चस्का लगा दो और बाद में जब आइसक्रीम का बचपन में और बाद में उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके पैसा ले लो। ड्रग्स मॉडल। यस रवि, बताइए। Hello, am I audible? यस। Yeah. So I heard few of the people, even Mr. Rajesh was speaking regarding this intellectual property rights on all those. See, I will speak with respect to only GeoMeet. Okay. So see, Zoom already it's an American company, though it has influence of China, but it's an American company. And all these things, intellectual IP properties or trademarks, anything which come, these are all legal things which happens in the legal formalities. We need to get the approvals done, and we have to register few of the things which a company can claim in any platform. That is one. Here in GeoMeet, that is what one is the very straight away strategy is ki it come up with the same GUI so that the learning curve of the product would be eliminated in the market right now. The persons who are already using the same kind of applications will go ahead, and because of the notions right now which is there in the country as of to use Indian products or Indian applications, especially application part, and to boycott Chinese products. So in that same line, I think Jio has come up with this one, and there would be some back-end strategy. There would be, because see, Jio is also a big company in India. Again, Zoom already has become a very big company in America at present, and it would not be like it will be just an decisions comes into develop and it will be developed in that way. There would be long process discussion would have happened in Jio technological teams, how to do it and what to do it, and then they come up with these things. One. Second point, this is just one software which we are talking about. Okay, I'll give you some examples of hardware. There are only limited company who do the manufacturing, but there are a lot of company who pick the same product from the same manufacturer. He will just label it with his own company name or logo, and he will circulate that product into the market. So provider will be like a manufacturer, OEM will be the same, but the product which a customer is using will be with a different company name. So in that way, what we will be calling that? I think it is on the same peripheral, on the same sequence, which a platform. It is just to reduce the learning aspects of any, especially in the SaaS model. This is being utilized because every SaaS models do have a learning curve itself. When you expose to the customers, you have to make your customers aware about or provide particular training to use the software itself. And most of this SaaS company, when they develop the products, even we are developing few products where we target particularly those who are market leader or those who are user friendly applications in that scenario segments. So we try and keep all those things in GUI as same, so that customers, we can reduce the customers learning curve. Apart from this, I don't think any other things which is there in terms of copying and other things which many people are talking about. Okay, sure. ठीक है, तो ये है. एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे. There is one more question to be thought deeply actually. If I claim, or if someone claims that ये IP copyright ये सब कुछ है नहीं, ये बस lawyer का या law firms का start किया हुआ चोचला है to just take money from all sides if there is any problem. ये वो example a divorce lawyer, divorce होगा नहीं तो वो lawyer कभी पैसा कमाएगा नहीं. That lawyer will always want कि कुछ होता रहे ताकि they can earn. Otherwise, this laws can be broken या जो भी है. ये एक thought है. एक और मैं बोल देता हूँ, अभिषेक can add. दूसरा ये है कि ये बस बनाया गया है कि डराने के लिए, ये थोड़ा जनता डर के रहे कि भाई आपने चोरी किया तो आपको जेल हो जाएगा. बट जो एक्चुअल चोर है
उसको डर लगता नहीं है, वो तो कैसे भी करके चोरी करेगा, उसका वो प्रोफेशन भी है रादर। यस अभिषेक, देन नीरज कैन ऐड। अभिषेक बताओ। यस, अभी आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आए जो हम चाह रहे थे कि लॉयर का बनाया हुआ एक पेचीदा खेल है। एक बहुत अच्छा थॉट बोलते हैं कि इस दुनिया में नो हर कोई बिकता है, हर कोई मीन्स मोर देन 95%, बस उसका कीमत पता होना चाहिए। लॉयर हो, गवाह हो, हर कोई बिकता है। इनफैक्ट एक समय शायद ऐसा भी आ जाए कि वो जूम भी बिक सकता है और जियो भी बिक सकता है, जरूरी नहीं है। उससे भी कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसको भी खरीद सकता है। और इनफैक्ट 10 to 20% शेयर सेल भी हुआ था शायद फेसबुक के साथ या किसी के साथ। ठीक है, तो वो सही बात बोले कि बस एक लॉयर का बनाया हुआ है। जो जितना ताकतवर होगा, जो जितना पैसा वाला होगा, जिसका जितना रिसोर्स होगा, दैट पर्सन इज विनर। बोलते नहीं, जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। यस यस नीरज प्लीज। सर मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। R&D एक बहुत बड़ा फैक्टर है नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और स्पेसिफिकली कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में R&D की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसके आप इवन प्रोजेक्ट प्लानिंग तक नहीं कर सकते क्योंकि आपका कुछ एंड गोल, आपका कुछ टाइम लिमिट्स आप उसमें डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो सालों साल चलता है। उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें आप बता ही नहीं सकते टाइमलाइन कि कितने दिन में क्या चीज बन के रेडी हो जाएगी। IT इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, बीट एनी इंडस्ट्री, आप वहां पे कुछ ना कुछ प्लानिंग करके बजटिंग कर सकते हैं कि इतने पैसे लगा के हम कुछ ना कुछ खड़ा कर देंगे। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कई बार 10-10, 15-15 साल तक लोग लेबोरेटरीज में लगे रहते हैं। आप उनको, दे आर हाईली पेड साइंटिस्ट, आप उनको पैसा दे रहे हैं। नॉट ओनली साइंटिस्ट को पैसा दे रहे हैं, आप रॉ मटेरियल्स और उन सब चीजों पे इतना खर्च कर रहे हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स पे खर्च कर रहे हैं, और एंड में प्रोडक्ट जाके फेल हो जाता है। तो हु विल बियर दैट कॉस्ट? क्योंकि एंड में कहीं ना कहीं वो जो सारी कॉस्ट लगी है वो कंपनी को कहीं तो निकालनी है ना। अगर ये, जब हम अगर ये बोल देंगे कि ये सब बकवास चीज है, किस लिए छुपा के रखना है अपनी रिसर्च को, इसलिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको सब दुनिया में ओपन कर दो, तो फिर कौन R&D करेगा? फिर तो सब कहेंगे ना कि क्यों मैं फालतू का पैसा लगाऊं, साइंटिस्ट को बिठा बिठा के सालों साल खिलाऊं, मेरे को एंड में तो कुछ मिलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं R&D को सपोर्ट करने के लिए ये सारे जो लॉज हैं बने हैं, ये जरूरी है। हर एक इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है। और अगर लोग इस चीज, ये अगर एक नई तरह की मूवमेंट निकली है कि लेट्स हैव एवरीथिंग ओपन और कोई छुपा के नहीं रख सकता और ये सारे लॉज खत्म होने चाहिए, तो देन देयर नीड्स टू बी अ फ्रेमवर्क कि कैसे वो R&D सपोर्ट करेंगी। क्या गवर्नमेंट्स आगे आएंगी, या फिर कुछ सोशल ग्रुप्स बन के सामने आएंगे जो उसको पैसा देंगे? कैसे दुनिया चलेगी, कैसे नई डिस्कवरीज होंगी? तो उस पे अलग से सोचना पड़ेगा। फिर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये सब चीजें मैं कुछ बोलूं नीरज? मैं एक लाइन ऐड करता हूँ। हाँ बोलिए। आई थिंक बहुत सारा रिसर्च जो होता है, okay, maybe I'll just leave an open-ended question. What is the real purpose of research? Yeah, Atul sir, please add. हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बात बोला कि पर्पस ऑफ रिसर्च, एजुकेशन, नॉलेज क्या है? दुनिया में प्रोग्रेस करना और सोसाइटी को हेल्प करना। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चूंकि मैं उस इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो आज के जमाने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है, वो इसलिए नहीं खर्च करती क्योंकि उनको सोसाइटी के वेलबींग की चिंता होती है। उनको पैसा कमाना होता है और लोगों को बीमारी, कभी कभी तो बीमारी फैला भी देते हैं। चाइना के केस में कोरोना जैसे हुआ, लेकिन और भी केसेस में फार्मा इंडस्ट्री का बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि लोग बीमार रहें, ताकि उनको दवा बेचने का मौका मिले और थोड़ा बहुत चेंज करके दवा बेचो। और उसका एग्जांपल देता हूँ, यूएस वर्सेस इंडिया। यूएस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी थोड़ा ज्यादा ये होता है, इनोवेशन R&D ज्यादा होता है। इंडिया में शायद कम होता था। नहीं, इंडिया में भी होता था। इंडिया में सुश्रुत ने सर्जरी किया, चार्वाक संहिता में उस जमाने से आयुर्वेदा में था। लेकिन कहीं पे क्या हो गया कि हम लोग
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग अपने जो, या हम लोग ओपन सोर्स में हमेशा से थे, नॉलेज को माना गया था हमेशा से कि नॉलेज इज सपोज्ड टू बी फ्री, there has to be no, anybody who wants to have knowledge they should have access to it. But क्या किया बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने और दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिकन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया कि नॉलेज को कॉपीराइट और पेटेंट उसके थ्रू रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया, और सारा जो फंडिंग भी जो चली गई ना, ऑल द फंडिंग वेंट ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि लोगों को पहले गलत खाना खिला के कैंसर करा दो और फिर कैंसर का दवा बेचो, लोगों को हार्ट की बीमारी करा दो फिर हार्ट सर्जरी से पैसे कमाओ, दैट वाज द माइंडसेट। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम ध्यान दें, कि लोगों को बोलो कि थोड़ा हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, वो करो, तो हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप टीवी चैनल खोलो, इंडिया में खोलो, अमेरिका में खोलो, दुनिया में कहीं में खोलो, सबसे ज्यादा एड्स जो दिमाग खराब कर देता है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो मेडिकल उनके एड्स। क्यों? क्योंकि लोग एड के थ्रू वो लोग डिमांड जनरेट कर रहे हैं, लोगों को फील करा रहे हैं कि तुम दवा नहीं खा रहे हो तो तुम कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ, जितनी सारी दवा खा सकते हो खाओ और तब तुम ठीक हो जाओगे। Yeah, I agree with Atul sir because ये एक मतलब आजकल तो ये हर कोई एक्सेप्ट करता है that pharmaceutical companies, especially in vaccines, what they are developing is to just make money. क्योंकि वो बीमारियां ही नहीं है, eradicate हो गई, even then they insist that vaccine is a must क्योंकि पैसा आता है उससे। मतलब हर इंसान जो बॉर्न होता है वो पोलियो का इंडिया में वैक्सीन लेगा ही लेगा, या फिर जो बाकी के हैं वो लेंगे ही लेंगे। अब जैसे एक निमोनिया का वैक्सीन है, मेरे बच्चों के पीडियाट्रिस्ट ने बोला कि लगवा लो, मैंने यहाँ कि इसकी एफिकेसी मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, so that pneumonia vaccine is only for one strain of vaccine and the probability is like 5% chance that person will not get pneumonia. I said I don't want, कितने के 3 doses 6 या 8,000 की. So look at the amount of money that the company is getting from each vaccine they are administering in humans. तो ये तो एक एग्जाम्पल। इसके अलावा दवाइयों का जैसे थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, we move on to the next one, फिर उसके लिए पेटेंट। तो मतलब it is more of a business rather than a welfare, rather than taking care. So that is absolutely correct. अभी आप देखिए जो हमारा ये भारत बायोटेक का भी वैक्सीन आ रहा है कोविड के लिए, so it will be available from 15th of August. 15th of August is not even 1 year after COVID. एक साल भी मान लो, so is it possible that a vaccine is developed and can be administered into a human being within less than a year, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स देखने को 1 साल लग जाता है मिनिमम. So that means they are missing a lot of testing phases. अगर वो टेस्टिंग phases मिस करते हैं, so vaccine they are lose chemicals and they are much more dangerous because they can cause life-threatening diseases, or they can paralyze, they can damage the brain, they can cause seizures. So vaccines that are very loosely called chemicals developed within a period of less than 3 to 4 years should never be administered. But अब vaccine की रेस चल रही है, so it is more of a business than anything else. होना चाहिए उल्टा, but कहीं ना कहीं उल्टा हो गया. Yes, Vamsi, please. Yeah, on that same front, one of the visions, hopefully in the next decade it happens, or maybe in the next 100 years, is I think every company should have, government should can impose something called a well-being tax. If there's a factory that is pumping in chemicals without processing into the water, there should be a specific tax for it, and it should be very clear. Same case, if pharma industry is giving vaccines, where the percentage even claimed by the pharma industry is 5%, then there should be a tax on the companies itself. And the tax should be proportional to how much damage they're doing, so that people are aware of it and the company themselves won't become totally money focused. The current economics makes it profit focused, but there's nothing company gets penalized for causing a negative harm on the world. I just wanted to share that thought with the group and see what.
Yeah, I that's just wanted to all. add one more example. Very good point you made, Vamsi. कि for example, the company I used to work for, GE, तो GE had to pay billions of dollar penalty because पूरे न्यूयॉर्क सिटी का जो हडसन रिवर है उसको उन्होंने अपने सारे केमिकल्स अपने जो मैन्युफैक्चरिंग थे न्यू जर्सी साइड से और न्यूयॉर्क साइड से हडसन नदी में डाल दिया. और इंडिया में तो हम लोग जानते ही हैं कि गंगा हो चाहे यमुना हो या ऑल द नदीज आर पॉल्यूटेड बिकॉज इंडस्ट्रीज जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सारा वेस्ट डंप कर देते हैं rather than investing some time and resources in making sure कि उसको अंदर में ही उसको प्रोसेस किया जाए या एनवायरमेंटल वेस्ट को. अभी तो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट कुछ साल पहले आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया का कचरा इंडिया के नदियों में इंडिया के ओशंस में इंडिया में डंप किया जाता है बड़े बड़े कंटेनर शिप से क्योंकि हमारे लॉज उसके लिए उतना स्ट्रिक्ट है. मैं ये 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एनी कंपनी फॉर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट डजंट मैटर, हम व्हाटएवर वी डू वी यूज सन तो फ्री में है, वी यूज अर्थ के ज्यादातर चीज फ्री में है, जमीन पानी नदी समुद्र जो भी है वो फ्री में है. तो हमने दुनिया अर्थ से हम लोग बहुत कुछ फ्री में लिया और बदले में हमने कुछ दिया ही नहीं. हमने कोई इंश्योर भी नहीं किया कि भाई हम जो ले रहे हैं उनको भी अर्थ का तो हम लोग कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट पेटेंट कुछ भी नहीं देते हैं. माँ या बोलते हैं ना अभिषेक ज्यादा अच्छे से बोलेंगे माँ को हम लोग तो कुछ देते ही नहीं है बदले में. माँ से केवल दूध पीते हैं और उसके बाद बड़े होके अपना दुनिया घूमने चले जाते हैं. तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नेचर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी एक एलिमेंट ऐड होना चाहिए कि किसी कंट्री में जैसे कि आप फैक्ट्री लगा रहे हो, कानपुर के पास बहुत पॉल्यूशन है नदी में, तो कानपुर सिटी को भी आपको गिव बैक करना. आप फैक्ट्री लगा रहे हो लेदर का फैक्ट्री, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कानपुर साफ रहे, वो नदी भी साफ रहे, वहाँ के लोगों को भी आप कुछ बदले में दो. दैट मूवमेंट आई थिंक इज गोइंग टू कम. स्पेशली कोविड के टाइम पे तो अवेयरनेस आ गया लोगों को, लोगों ने देख लिया फिर से कि दुनिया साफ दिख सकती है, हवा थोड़ा फ्रेश दिख सकता है. दिल्ली का पॉल्यूशन फॉर एग्जांपल फेमस है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूशन से पॉल्यूटेड सिटी में है. अब दिल्ली वालों ने देख लिया तो दिल्ली के जो वीआईपी इलाका है राष्ट्रपति भवन से लेकर जो वो इलाका जो है उस इलाका में ग्रीनरी वहां पे तो हवा जब भी मैं जाता हूँ कभी कभी कोशिश करता हूँ वहीं पे रुकने की, तो वहां पे आपको एकदम फ्रेश हवा सांस आती है. लेकिन आप थोड़ा सा चले जाओ ओखला साइड में या नोएडा साइड में या कहीं भी दूर, तो वहाँ पॉल्यूशन आपकी जान ले लेगा. पूरे वर्ल्ड में फेमस है दिल्ली कितना पॉल्यूशन है. तो आई थिंक ये जो पॉइंट बोला हुआ हमसे ना कि हमको all companies, individuals, we all have to think about it कि for everything we produce or we consume, we need to pay back to somebody जो जिसको कि हम लोग जानते नहीं है. We pay back the local state, local city, local panchayat, whoever. We need to pay back on local society. We need to pay back. Otherwise, it won't be sustainable. Yeah. Yes, Mr. Ravi. Ravi, So my point was with respect to your questions too. This one IP and all the certificate which is there. So विशाल ऐसा है कि ये सारी चीजें this is there in existence in every country, even it is there in India. ठीक है, लेकिन ये सारी चीजों का cost होता है. See initially if I'm and Neeraj was telling totally right point कि R&D के लिए any company or who any venture or any universities or any PhD or scholars who decided to go for an R&D, okay, तो there are chances कि वो जो जिस thought पे या जिस idea पे काम कर रहा है उसका एक IR कर ले so that कि उनका वो जो thought है the time he will take to develop it, it will remain with him. क्योंकि हमेशा ये मार्केट में होता है कि and that sense we can say it is a copy kind of things. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जियो मीट में बातें करें, I don't think it is a kind of copy, but it is a similar app to the Zoom. क्योंकि दो चीजें बहुत ही क्लियर है. सी मैंने पहले भी पुट किया कि इट्स एन अमेरिकन कंपनी जहां पे ऑलरेडी ये IP और एवरीथिंग ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग इज वेरी लेजिटिमेट, आप स्किप नहीं कर सकते हैं. और इंडिया ऐसा जहां पे these things borderless, but again Reliance is a big industry, big company who has all the teams in place, maybe finance, technology and legal teams who are already in place, who would be looking on all the aspects, what is the consequences going to happen if I am doing in this way, I am going in this way, and some kind of.
So it is very balanced product which is coming into the market by an Indian company to, and we as an Indian need to accept it. This is my point. Mhm. Okay. Yes, Neeraj. हाँ सर, बात हुई कि नॉलेज ऑट टू बी फ्री। सुश्रुत जी ने सर्जरी करी और उसको एक किताब में लिख के बांट दिया। सुश्रुत जी की नीड्स बहुत कम थी, एक धोती में और शायद मतलब बहुत कम रिसोर्सेज में पूरा जीवन यापन हो जाता था। समय बदला है, जरूरतें बढ़ी हैं, कैपिटलिज्म नाम की एक चिड़िया का जन्म हुआ है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है। अगर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी सोसाइटी में तो कोई इनोवेट भी नहीं करना चाहेगा। सुश्रुत बन के हर कोई जीवन नहीं बिताना चाहता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत है, और हर जगह नहीं है तो कुछ जगह तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है तभी वो एक जिज्ञासा, हर कोई क्यों स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि सबको पैसा दिखता है और पहले दिन से माइंड में एफ नाम का कीड़ा घूमने लगता है कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। पहले दिन से डेक तैयार होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, कोई इस चीज को मुंह पे लाए या ना लाए, हर किसी के माइंड में मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस नॉलेज को चाहता है कोई ना कोई, मैं आगे बड़ा बनूंगा। बड़ा बनने का कई चीजें हम डिस्कस करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए करूंगा, लेकिन मनी इज स्टिल अ फैक्टर ओवर देयर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जितनी भी बातें हैं ये सब, ये मनी के अराउंड घूमने वाली चीज है। तो विद टाइम हर चीज को बदलाव हुआ है और अकॉर्डिंगली ह्यूमन थॉट में प्रोग्रेस हुआ है, और हमें भी अपनी सोच को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लॉज बेकार नहीं है, इनकी जरूरत है सोसाइटी को, ताकि वो कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। या नहीं, ठीक है, लॉ जरूरी है। लॉ बन गया है कि चोरी नहीं करना चाहिए, फिर किसी ने चोरी कर लिया मेरे घर। अब या तो मैं दिन भर रोता रहूं कि भाई चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, पुलिस में जाऊं, दौड़ भाग करूं, ये करूं, वो करूं, या फिर बोलूं कि चलो जाने दो, लेट मी मूव फास्टर। तो मैं ये लाइक आई वांट टू पुट दिस क्वेश्चन ऑन द फ्लोर दैट लेट्स से अभी जैसे जियो मीट और जूम का करते हैं, अगर जूम को लगता भी है लेट्स से दे हैव जियो मीट हैज copied exactly, so should Zoom think about suing GeoMate, or they should just let it go? Yeah, Vamsi, you want to say something, please? I'm kind of 90% certain Reliance will pay Zoom, or else it will be a huge infringement, and Reliance can be sued pretty bad. Mm-hmm. So they will pay before getting sued or after getting sued? No. Yeah, if they're not paying, then Reliance Jio will get sued. The reason I'm saying that is long before Jio happened, RingCentral, which our company was using, had a very similar tie-up with Zoom, and they RingCentral was paying a royalty to Zoom, and that's why both companies prospered. I don't think Jio would want to mess up with just copying the code base, not the feature set. Which I feel is, thinking from engineering point of view, they would have definitely had a background deal that they will pay royalty to Zoom from a Jio point of view. Yeah. So it's also encashing in a very shrewd manner. It becomes Indian fully, and then there is a royalty being paid to an American company owned by, let's say, a Chinese origin guy. And this way, no sentiments get hurt, and everybody makes their own share of profit probably. And it's pretty much I don't know. This is just my. No, also, what do you think? Also, at least I think 70-80% of investments in India, in startups especially, I don't know, in big companies, comes from US itself. And also throughout the world, probably 70% of the world's money from the investment world is in US anyway.
Sure. So if an Indian company has a US investor, then it makes nationalism very vague. It doesn't really mean too many things. Free trade. No, I think that nationalism is more of anti-China sentiment, I guess, not anti-American or anti-Indian. But Yeah, it is one anyway, interesting Zoom thing. was somehow on the borderline, falling here and there every time. So I guess Geomate used that timing. Yeah, one of the reasons why I was not very angry on China, like unlike more people, is I heard that if you see Goli Vada Pav, it's a big chain in India, and there is not a single chain, Indian food chain, that is big brand in India in US, because US has those, they stopped it. But you will see there's so many US food chains in India. Take McDonald's, Burger King, and they're coming. Pizza Hut, and they keep coming. Yeah. If we were to follow that, we should ban all American things, American chains in India, so that Indian chains can also be in US. At a high level, every country has some protectionist measures that the government decides. And they may or may not make it open and public to everyone, but it's there in every country. Just that some are more liberal and some are more protectionist. Way to draw that line is a scale. It's a sliding scale, and each country and government decides it and markets it based upon where they stand. They play in the gray zone. That's what. So exactly to Vamsi's point, कि योगा हो फ्री में, दुनिया को फ्री में मिला, बट योगा चेंज पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं. नॉन इंडियंस लोग ज्यादा अमेरिका में दुनिया में योगा के स्टूडियो चलाते हैं, चेंज चलाते हैं. योगा टू कामा सूत्रा टू ऑलमोस्ट मोस्ट थिंग्स, स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज, इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफी हाई थी, बट समवेयर हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रखा, या हमेशा से हमारा ये रहा है कि नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, तो हम लोग पूरी दुनिया को बांटते हैं. जैसे योगा का जो सबसे ऑथेंटिक है, जो मेन बुक है पतंजलि का योग सूत्र, आज anybody in the world anytime they can use yoga word. कोई can somebody stop it कि why are you using yoga, ये तो हमारा इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था क्या? या कामा सूत्रा को लेके पूरी दुनिया में सेक्स के तरह तरह के बुक्स पब्लिकेशन बिकती हैं, वीडियोस बिकती हैं, और बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं जो कि जिनका सोर्स था इंडिया, लेकिन एक इंडिया में गड़बड़ हो गई कि for 1000+ years India was very weak. तो rules are made by the strong to protect the property. आजकल दिल्ली हो, बैंगलोर हो, दिवाले या सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ ज्यादा होते हैं? जहाँ पे बहुत पैसे वाले हैं, तो उनको अपने फैमिली को या अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो काफी दे बिल्ड वॉल्स. तो वॉल्स, कंपनीज भी इस तरह के वॉल्स बनाती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वॉल्स बनाए या लीगल वॉल्स बनाते हैं, लॉयर्स की वॉल, सो दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. लेकिन दुनिया में एक ये भी ट्रेडिशन रहा है, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में रहा है, कि ओपन बॉर्डर्स, कोई भी कहीं से जिससे सीखना है सीख लो, और नथिंग रॉन्ग विद दैट. हाँ, कमर्शियली अगर आप कुछ बेच रहे हो तो जहाँ से सोर्स है उसको भी थोड़ा कुछ आप शेयर दे दो. एंड इंडिया में वो नहीं थी, इंडिया का काफी वीक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इनोवेशन, बट अब थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. अभी क्या है कि आज अमेरिका जो है चाइना की कंपनीज को, चाइना ने यूएस की कंपनीज को बैन किया हुआ है. जो भी कंपनीज थी यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज है, all those companies are including Facebook को भी बैन किया हुआ है. बहुत सारी कंपनीज को चाइना ने बैन किया हुआ है, गूगल को भी बैन कर दी. सारी कंपनीज को चाइना बैन कर देता है, लेकिन चाइना को अपना चीज हर जगह बेचना है. तो मेरे की सवाल बहुत स्ट्रॉन्ग, किसके पास ज्यादा ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला हाल है कि इंडिया हैज टू फोकस अ लॉट मोर ऑन कि हमारी थोड़ी लाठी स्ट्रांग हो जाए. एंड आई थिंक अभी काफी हम लोग क्लोज आ गए, अगले 5-10 साल में हो जाएगा, दैट इंडिया विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग ऑन द इक्वल फुटेज. जैसे अभी कि बॉस, हमने तो, मेरी तो, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुमने तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दवा बना के बेच दिया हमको, हमारी जो तुमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्री में ली है उसका पेटेंट कौन देगा? ट्रिलियंस. और फॉर दैट मैटर शशि थरूर ने बहुत अच्छा एक उनका वीडियो बहुत फेमस है, उन्होंने इंग्लैंड पे बताया कि इंग्लैंड ओज trillions of dollars for all the loot they did those hundreds of years. So many of the advanced or so-called developed countries
जिसमें आई एम ऑल्सो लिविंग इन वन ऑफ दोस कंट्रीज, कि डेवलप्ड कंट्रीज का पूरा इकोनॉमी और वेल्थ प्रॉस्पेरिटी इज बेस्ड ऑन लूट की कमाई है। अमेरिका ने क्या किया कि यहाँ के एबोरिजिन्स तो जो अमेरिका में जो आज जो नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका जो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यहाँ के जो लोकल एबोरिजिन्स थे जिनको बाद में उन्होंने रेड इंडियंस का नाम बोल दिया, उनको लूट कर उनकी सबको बर्बाद करके उनको क्या दे दिया कि वो लोग कसिनो चला सकते हैं, जुआ तुम लोग खेलने में बिजी कर दिया उनको, और इनकी सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वेल्थ, जमीन, सब कुछ कैप्चर कर लिया। यूएस में किया, सेम चीज यूरोप ने भी किया पूरे वर्ल्ड में, जब यूरोप पावरफुल था। स्पेन ने साउथ अमेरिका में किया, इंग्लैंड ने तो पूरा, हम लोग जानते हैं पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, तो पूरी दुनिया में इन्होंने लूटपाट मचाई। और अब बोले नहीं, अब तो हमको जो लूटना था लूट लिए, अब सब लोग नियम कानून फॉलो करो, डोंट दूसरों की प्रॉपर्टी में इंटर मत करो। दैट वाज नॉट फेयर, एंड आई थिंक अब करेक्शन हो रहा है, मार्केट करेक्शन भी नहीं हो रहा, अब ये सिविलाइजेशनल करेक्शन हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Yes, Mr. Ravi, we are in our last 5 minutes. Ravi ji, बताइए. So I have a question. Okay. See, I'll stick to again the Reliance only. As a salesperson or as a marketing person, I see this in this way. Right now my country required a product which the foreign product is already facing an issue. I have a money, I have a team to develop it, and I want to negotiate with a company who is already there in India, like Zoom. So on my table, I have statistics to discuss with Zoom. Like, see, in China, these are the products which is being banned. See, WeChat is nothing but WhatsApp only. But again, WhatsApp never entered in China. Facebook, again, never entered in China. So same like economy in Asia, now India is putting up in that way. So I have a good point to discuss with Zoom to have a mutual understanding in terms of developing a product in India and can run, and we can have a mutual sharing of profits. Sure. And as Bomshi was saying, there is a penalty would be chances are there would be paid to Zoom by Reliance when the shoe would be there. But I think internally there is definitely a talk would be there between Zoom and Reliance. Yeah. Yes, Neeraj. सर मैं थोड़ा सा नेशनलिज्म के बारे में बोलना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ टाइम पहले अगर हम इफ यू गो बैक लाइक 7-8 years बैक, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ग्लोबलाइजेशन जो था वो बहुत स्ट्रांगली वो वेव प्रिवेल करना स्टार्ट कर गई थी। लेकिन विद राइज ऑफ राइट विंगर पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में भी हुआ है, यूएस में भी हुआ है, और बाकी काफी कंट्रीज में हुआ है। सो नेशनलिज्म इज बैक, बट कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा ऑफ ह्यूमैनिज्म में नेशनलिज्म की जो सेंस है वो आउटडेटेड है, और ग्लोबलाइजेशन इज द डिमांड ऑफ आवर, विच आई से। बट टाइम टू टाइम कुछ कंट्रीज ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे नेशनलिज्म को सपोर्ट मिला ग्राउंड लेवल पे, और उसका राइज हुआ है, और कुछ टाइम तक ये वेव चलेगी। अगेन जब ये सब ठंडा हो जाएगा तो दोबारा ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमैनिज्म की वेव आएगी। तो ये चीजें अप डाउन करती रहेंगी। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को जो हिस्टोरिकली अगर आप कहीं पे जाके देखेंगे कि फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म डिफाइन कहाँ पे होता है, ये बात कहाँ से आई कि लेट्स हैव ऐसे बाउंड्रीज बनाते हैं या ऐसे कहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ऋग्वेदा में आता है, जो कि रफली मतलब बोला जाता है कि 2000 साल पुराना तो कम से कम है। उसमें सबसे पहले बात हुई है कॉमन एम, कॉमन माइंड, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन समिति और कॉमन स्टेट पॉलिसी की। तो अभी जो ये वेव ऑफ नेशनलिज्म है वो भी उसी से डेराइव्ड है, और नेशनलिज्म के साथ सारी की सारी इकोनॉमीज और प्रोडक्ट्स और जितने भी आपके आज के टाइम पे बिजनेसेस हैं वो उसी के हिसाब से डिफाइन होते हैं, उसी के हिसाब से एंटी चाइना सेंटीमेंट या एंटी फलाना सेंटीमेंट चलता है।
तो ये बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, डाइल्यूट होते हैं, दोबारा से उभरते हैं। तो ये देखने वाली चीज होगी कि हाउ इट गोइंग टू बी मूव फॉरवर्ड। इस पे कुछ बोलूं मैं, अनलेस बहुत और किसी को बोलना है? यस प्लीज सर। हाँ, तो बहुत सारे, नीरज ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऋग्वेद के टाइम से भारत में वो जनपद होते थे। जैसे कि अगर हिस्ट्री किसी ने पढ़ा हो या चाणक्य सीरियल किसी ने अगर वॉच किया हो, तो 2000 नहीं 5000 7000 पहले वो थी, मतलब लोकल गांव लेवल पे तक का डेमोक्रेसी थी, फिर गांव से स्टेट लेवल था। लेकिन नेशनलिज्म जो मॉडर्न फॉर्म में जो जानते हैं, तो वो स्टार्ट हुआ यूरोप में, स्टार्ट हुआ ये एरिक हॉब्सबैविन बहुत बड़ा ऑथर, वर्ल्ड का वन ऑफ फॉरमोस्ट है। तो उसने बहुत अच्छी अपनी किताब में लिखा था, अरुण शौरी की किताब में अच्छा डिस्क्राइब किया है कि अचानक एक दिन चलते चलते मतलब बीच पे चर्चिल ने जैसे लाइन खींच दी तो पूरा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज डिफाइन हो गई, बन गई, और यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया। जबकि जर्मनी खुद में कोई कंट्री था नहीं, बहुत सारे अलग अलग समझ लीजिए कबीले या ट्राइब्स थे, डिफरेंट थे। बट बाद में एक विजनरी आए, बिस्मार्क आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को यूनाइट होना चाहिए, तो एक जर्मन कंट्री बन गया। एंड सेम थिंग, पूरा इंग्लैंड तो कोई था भी नहीं, इंग्लैंड तो एक्चुअली फ्रेंच और वो लोग करा के जो तुम लोग बजाए। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हुआ है कि जब लोग जब यूनाइट हो जाते हैं और कोई विजनरी लीडर आता है तो बोलता है कि सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मोहल्ले में मान लीजिए कि सेफ्टी चाहिए, तो मोहल्ले का जो सबसे रिस्पेक्टेड आदमी होगा या जो होगा ना, तो वो पूरे मोहल्ले वालों को बोलेगा कि चलो हम लोग यूनाइट करते हैं, एक सभा बनाते हैं, या अपार्टमेंट वालों की कमिटी है और हम लोग से आजकल सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत इश्यू हो गया है, तो हम लोग एक दीवार बना लेते हैं या कुछ नियम बनाते हैं कि सब कम्युनिटी के अंदर आने के पहले उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म डेवलप। लेकिन गुड न्यूज इज, युval नोआ हरारी की किताब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, होमो दिवस में, तो he has articulated very well कि the idea of nationalism is dead in the coming future। ये जो कोरोना के टाइम पे जब भी वर्ल्ड में जब स्लो डाउन होता है या इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तभी ये वॉर होते हैं। वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही हुआ था, और दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम होती हैं। लेकिन अब जैसे ही कोरोना पास हो जाएगा और थोड़ा वर्ल्ड सिविलाइज जाएगा, इकोनॉमी फिर से वापस आने लगेगी, देन वी विल रियलाइज कि बॉस आज के जमाने में हम लोग ऐप यूज करते हैं, कंट्री ए वाला कंट्री बी का, पूरी दुनिया में किसी का कोई भी ऐप कहीं भी यूज करता है, किसी भी, तो वर्ल्ड में ये आ जाएगा ट्रेंड कि हम लोग पूरे एक फैमिली के पार्ट हो। नाउ लेट्स डिस्कस टॉक विद एलन मस्क कि बॉस कि मार्स में हमारे लिए कुछ कॉलोनी का इंतजाम कर रहे हो कि नहीं, या मून में कुछ कॉलोनी, उस टाइप पे। तो ह्यूमैनिटी एज अ प्लैनेट विल स्टार्ट हैविंग अ मोर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। अब ये 2020 में तो नहीं होगा, 25 में होगा, 30 में होगा, लेकिन दैट इज द डायरेक्शन इन द व्हिच द वर्ल्ड विल मूव एज सून एज वी आर आउट ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस एंड दिस हाइपर नेशनलिज्म। दैट इज अ गुड न्यूज आई सी कि दुनिया यूनाइट हो जाएगी। और हमारा डिस्कशन अभी होगा कि अब दूसरे प्लैनेट से कोई थ्रेट आने वाला है या उस तरह की चीज है, कि तब पूरे अर्थ एक साथ हो जाएगी। जो बहुत सारी जो फिल्में बनती हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, एलियंस आने वाले हैं या कोई ट्राइब आ, तो दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन व्हिच आई सी, कि लोग यूनाइट हो जाएंगे एंड हम लोग पूरी दुनिया वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेंगे। ग्लोबल हंगर, वाटर, पॉल्यूशन, इन सब चीजों पे, या हाउसिंग की क्राइसिस, तो इन सारी चीजों पे पूरी दुनिया को यूनाइट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने कंट्री में तो आपने बहुत डेवलप बना लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आज अमेरिका वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, बट इज नो वे इज एबल टू स्टॉप द इमिग्रेंट फ्रॉम मेक्सिको जो कि बॉर्डर पे हैं, या कनाडा ऊपर से नीचे आ सकते हैं या नीचे से ऊपर जा सकते हैं। और आज के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया है कि जिसको आना है वो यूएस तो आ ही जाएगा। करोड़ों की संख्या में लोग इलीगल, इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड से इसको आना होता आ ही जाता हो, इंडिया का पॉलिसी नहीं था। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी पूरे दुनिया को हम लोग मानते थे कि खुश रहें, सुखी रहें और हेल्दी भी रहें। तो वो सर्वे भवन्तु निरामयाः के लिए भी टाउन का जो मुखिया जो है ना, वो थोड़ा अच्छे आदमी को बनना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि अभी जो टाउन के जो मुखिया है वो गुंडे लोग हैं, चाहे वो चाइना का हिंग चिनपिंग हो या अमेरिका का ट्रम्प हो, गुंडे लोग हैं। तो इंडिया में कुछ सालों में जब स्ट्रेंथ भी आ जाएगी और हमारा जो मुखिया होगा ना, वो बोले कि नहीं, सर्वे भवन्तु निरामयाः वाला को फॉलो करते हैं, एंड द वर्ल्ड विल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप लोग देखते भी होंगे न्यूज में कि कोरोना को लेकर भी एक अलायंस बनाने में काफी आसान हो गया।
मोदी के ये में कि ही वाज एबल टू बिल्ड अलायंस कि सारे लोग एंटी चाइना ही, कभी कभी दुश्मन के अगेंस्ट यूनाइट करना आसान होता है, तो एक विलन मिल गया स्टोरी में चाइना, तो अब चाइना के चाइना और कोरोना, तो पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ यूनाइट होकर लड़ रहे हैं कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर। अतुल सर के पॉइंट में जस्ट एक चीज ऐड करूंगा, वसुधैव कुटुंबकम, दैट्स आल्सो अ बिग कॉन्सेप्ट। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। यस, Okay. Okay, we are over time, so we'll close now. We'll meet again tomorrow at 10 p.m. Good night, everyone. Thanks, Vishal. Thanks, everyone.